YouTube channel. Okay, right, ठीक है. So now we have got self-service. Now please understand, when I talk about self-service, इसका मतलब ये नहीं है कि खाना भी आपको पकाना है. Self-service means just like think about this fact that okay, maybe when you come to the college, I mean like जब आप IHM ग्वालियर में full fledged आ जाओगे, that time you will take a look that in the I mean like in the student dining hall there is a, I mean like we have to feed almost like 900 student or 800 student first year, second year, third year, okay, which is not virtually possible if I start serving them including each of the waiters and all. अगर एक waiter से अगर आपने service करने की कोशिश करें, that is not possible. तो basically क्या होता है, it is actually found in the school cafeterias, in the college and institution, and also you can take a look when you go as an industrial trainee or as a hotel employee, in the hotel staff cafeteria is there where you can see this service also. तो basically cafeteria service जो होता है, जो cafeteria concept जो है, ये concept वहीं से शुरू हुआ है जहां पे एक बहुत बड़ा बेन मैरी रहेगा. बेन मैरी के बारे में आपने सुना है? Anybody has heard about बेन मैरी? First semester, anybody has heard about Ben Mary? People? That one is a double boiler, right? Double boiler. Like yeah, right. It's a double boiler. So basically, Ben Mary क्या होता है कि we will take a look at that also. Ben Mary में you just cook the food and then you know that if I keep the food for 3 hours long time, then it will not going to stay fresh for a long. So that's the reason there is something which is kept on a hot water. आप जाहिर सी बात है कि अगर आप नीचे कोई गैस लगा के रखोगे, खाने को अगर आप 3 घंटे से कंटिन्यू कुक करते रहोगे, तो दैट्स अ प्रॉब्लम ना, बेसिक कॉमन सेंस. दैट्स द रीजन इट वाज डिसाइडेड कि विल डू इट ऑन अ डबल बॉयलर कंसेप्ट. डबल बॉयलर कंसेप्ट में कुछ ऐसा आएगा. अब देखिए, सेल्फ सर्विस में आपका मेनली कैफेटेरिया सर्विस होता है. यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशन है. द फर्स्ट वन इज द ट्रेडिशनल कैफेटेरिया सर्विस. आफ्टर दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्री फ्लो कैफेटेरिया. Okay, दोनों में क्या डिफरेंस है, we'll take a look at that. And the final one is echelon. It's called echelon. Okay, not echelon नहीं है ये, ठीक है. इसको हम कहते हैं echelon और we can call it sawtooth. अब इसको sawtooth क्यों बोलते हैं, वो हम जब जाएंगे इस टॉपिक में तो हम जानेंगे. तो what is the traditional cafeteria service? Let's take a look. What is that? तो ये जो आपके सामने अभी स्क्रीन है, ये देखिए, मैं इसके बारे में अभी तक बोल रहा था. IHM ग्वालियर में भी कुछ ऐसा होता है जब आप स्टूडेंट डाइनिंग हॉल में खाना खाने आओगे. ऑब्वियसली ये ऐसा हमारे पास ये टेबल टॉप्स नहीं है, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज नोन एज अ बेन मैरी. इसकी नाम ही है बेन मैरी. तो बेसिकली आप देख सकते हो ये जो कंपार्टमेंट है, दिस एरिया, एंड द फूड इज पुट ऑन अ दिस कंटेनर एंड अंडर दैट देयर इज अ हॉट वाटर. And in that hot water, it is charged with the electric power. There is a heater, electric heater है यहाँ पे. वो हीटर क्या करता है, बेसिकली हीट द वाटर. जैसे कि समझ लीजिए गर्मियों के टाइम पे आपने अभी लाइक सर्दियों के टाइम पे आपने देखा होगा कि whenever there is a I mean like when you want to take a bath, what you do, you put some water in a I mean like in a bucket and then you put some heater inside. वो rod आपको याद होगा. So that rod is basically known as the heater, and that heater concept is used here only. इससे क्या होता है, पानी आपका पाइपिंग हॉट हो जाता है, and then there is a steam, and the steam will keep the food. Because remember one thing, steam is much more dangerous than hot water. ये तो आपको मालूम ही होगा. That's the I mean like the new concept, not a new concept. I mean this is a basic science. Okay. अच्छा, people, चित्रांशु श्रीवास्तव बोल रहे हैं कि उसको स्लाइड नहीं दिख रहा. आप सबको स्लाइड दिख रहा है क्या? Yes sir. No sir. अरे यार ये नो सर. नो सर, ठीक है. तो चलो एक काम करते हैं, प्लान बी में एक्टिवेट करता हूँ फिर. छोड़ो, प्लान बी में चलते हैं अपन. तो प्लान बी इज जस्ट अ मोमेंट. ओके, नाउ यू कैन ऑल सी, आई बिलीव, राइट? अभी दिख रहा है ना कुछ? यस सर. हाँ ठीक है. Yes sir. चलो, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे. या थैंक यू. तो नाउ वी कैन टेक ए लुक. ऐसे यहाँ पे खाना रखा हुआ है एंड देयर इज अ शेफ स्टैंडिंग आउटसाइड जस्ट टू रिफिल द फूड एंड एवरीथिंग. दिस इज अ ट्रेडिशनल कैफेटेरिया सर्विस. लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम दिखाई दिया. देयर वाज अ प्रॉब्लम स्टार्टेड. यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम?
your dal, your roti, your rice, your chicken, your paneer, your salad, your onion, everything is in one place, one counter. Naturally, one counter means lots of crowd. अब आप रेलवे स्टेशन में आप जाओगे तो आप देखोगे कि the one count, if there is a one counter, the size of the line will be big. If there is a 4 counter, slightly less, 5 counter, slightly less. So the one counter creating a problem because everything is in one counter actually. Now to avoid this, what we have done, we have done something different, and that is known as, this is your Bain Marie, which you have the screen on your screen, you can take a look. Right now, to avoid this in a better way, और इसमें थोड़ा सा और सुविधा लाने के लिए फिर होटेलियर्स ने क्या डेवलप किया, समथिंग लाइक दिस, अ फ्री फ्लो और आइलैंड बुफे कैफेटेरिया. मतलब क्या है, अब हमने तोड़ दिया बेसिकली. यस प्लीज. हेलो. Previously, what used to happen that all the food is in one counter. So rice is in one counter and the chicken is in one. Basically, main course in one counter, salad in one counter. Now you do something like this. Take a look at this picture. अभी जो नया पिक्चर आपके स्क्रीन में आ रहा है, यहाँ पे what we have done, we have divided this area into separate section. So let's take an example. The first counter, ये जहाँ पे अभी आपका मेरा भी माउस जहाँ पे है, यहाँ पे you will only get the salads and all. This counter you will only get the bread rolls, and the other counter you will get only main courses. अब इसमें क्या हुआ, what will happen in this, that the crowd get divided into separate counter, so there is a very less line. Now let's take an example. You are planning to have a very less meal of lunch. You just want that, ठीक है मैं थोड़ा रेस्टोरेंट में जाऊंगा, I mean like मैं आज कैफेटेरिया में जाऊंगा, जाके मैं थोड़ा सा सैलड खा के आ जाऊंगा. But the problem ये है, when you go for a salad, you still have to stand in front of a huge line. Why? Because समझ लो अब अंकिता सोच रहा है कि मैं ओनली सैलड खाऊंगा, लेकिन मुस्कान सोच रहा है नहीं मेरे को तो पूरा खाना खाना है, सैलड क्या मैं 17 कोर्स मेनू पूरा खाऊंगा. तो अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अंकिता भी जिस लाइन में है तो मुस्कान भी उसी लाइन में खड़ा है, क्योंकि और सामने कम से कम 40 लोग हैं. वो 40 का भीड़ जब तक खत्म नहीं होगा तो ना मुस्कान को खाना मिलने वाला है, ना अंकिता को खाना मिलने वाला है, ना अपना आस्था कुर्रे को खाना मिलने वाला है. So this is the problem started. Now what these people have done, they divided the counter. They says okay चलो एक काम करते, सिंपल थिंग है, निधि को ओनली डेजर्ट खाना है तो उसको डेजर्ट काउंटर में भेज दो. कालू सिंह मुवेल को ओनली चिकन खाना है, उसको चिकन काउंटर में भेज दो. मुस्कान को ओनली बस सैलड ही खाना है, उसको सैलड काउंटर में भेज दो. इसमें क्या होगा, देयर इज 0 लाइन एंड इट्स वेरी स्मूथ एंड नाइस. Okay, this is the main thing. Then the free flow counters had started to arrive. मतलब आइलैंड के हिसाब से हमने डिवाइड कर दिया. तो द फर्स्ट वन इज अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल वन, जो यूरोप के फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस में शुरू हुआ था. आज हमारे पास सब जगह ये सब चीज अवेलेबल है. देयर इज अ वेरी फेमस कंपनी which gives food to the all, I mean like which prepares the food only for the corporate offices like McKinsey, उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल. कोई बोल सकता है कौन है वो कंपनी? वहां पे जाके ओनली खाना ही वो मैन्युफैक्चर करता है एंड स्टाफ को डिस्ट्रीब्यूट करता है वो. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपनी? एनीबॉडी नो? IHM ग्वालियर में लास्ट ईयर कैंपस करने आया था वो. एनी आइडिया पीपल? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, देयर इज No, Radisson is a hotel. No, Radisson is a hotel. Radisson तो कभी नहीं आएगा. There is a company, वो क्या करता है, उसे मालूम है कि Google, Facebook, Apple, Microsoft, Deloitte ये सब कंपनी में एम्प्लॉयज है, उनको स्टाफ कैफेटेरिया में ऐसे खाना है. वो खाना को बनाने के लिए they employ some chef and hire some chef also. So उसका नाम क्या है? कौन बोल सकता है उस कंपनी का नाम? The company's name is Sodexo. Please remember people, Sodexo. तो ये क्या करता है, ये आपका बस they manufacture the food, I mean they cook the food and after that they serve you in the counters like this. ठीक है? तो चलो, it's a very nice company to work. चलो बाद में हम देखेंगे उसके ऊपर बारे में.
इसे हम कहते हैं फ्री फ्लो एंड शोल्डर एरिया। अब इसके बाद क्या हुआ, चलो इसमें तो ए फ्री फ्लो एंड ट्रेडिशनल जो कंसेप्ट है इसमें यू कैन अकोमोडेट 500-600। नाउ इमेजिन देयर इज अ 1 लाख क्राउड इज कमिंग टू योर होटल। उस केस में आप क्या ये कर सकते हो? अब देखो यहाँ पे यार छोटा सा आपने आइलैंड ये कर दिया तो फिर ठीक है, लेकिन जहाँ पे 1 लाख कंटिन्यूअस लोग आएंगे, you know there is something like, let's take an example, when in India we have got you know there is something called खेलगांव। कहाँ पे है ये खेलगांव? कौन बोल सकता है खेलगांव कहाँ पे है? यस प्लीज। पंजाब, यूपी। सॉरी, यूपी में सर। नो, इन पंजाब। रांची। खेलगांव रांची में नहीं है, नहीं यूपी में नहीं। यू पीपल सर राजस्थान। नो, आप लोग भूल गए कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में? 2010? नो सर, Yes, yes, Delhi. Sir, it is in New Delhi. Delhi. New Delhi. Yeah, it is in New Sir, New Delhi. Delhi. तो जब भी आप दिल्ली में जाओगे, बेसिकली आप जब मेट्रो रेल पकड़ते हो और जब मेट्रो जब द्वारका के ऊपर से जब आपका जो मेट्रो ट्रेन है वो जब आई मीन लाइक योर एरो सिटी की तरफ जाता है तो वो फ्लाईओवर लेता है एक्चुअली। उस टाइम वो खेलगांव दिखाया, दैट्स अ ह्यूज एरिया। उस खेलगांव में एक बार क्या हुआ था, दे हैव स्टार्टेड दिस कंसेप्ट कि जब प्लेयर्स विल कम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, लॉट्स ऑफ डेलीगेट्स विल कम, so to accommodate them in a proper way and a nice service way, there is something called echelon और sawtooth। अब ये जो बुफे का कंसेप्ट है, कैफेटेरिया कंसेप्ट, इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने अभी आ रहा है, that's your echelon and let's take a look how does it look like। the biggest of all, the biggest मतलब the very biggest, and this is the photo of the खेलगांव। एक कॉमनवेल्थ गेम्स का फोटो है। ये मत समझना कि ये कोई फॉरेन में है, ये इंडिया का फोटो है। इट लुक्स लाइक ये कोई नेदरलैंड यूएसए में होगा। ये लिटरली ये इंडिया का फोटो है एंड दिस इज द खेलगांव, जो ये पूरा यहाँ पे एक कैफेटेरिया था जहाँ पे इन लोगों ने ऐसे, सो देयर इज अ सैंडविच सेक्शन, यू कैन टेक अ लुक, ए सुशी, वेजिटेरियन, ऑल दिस थिंग इन लाइन। आई मीन इट्स अ ह्यूज एरिया, समथिंग लाइक दिस। The next picture you can take a look. So it is like, you know, अगर हमने दो दिल्ली टर्मिनल 3 एयरपोर्ट, 4 टर्मिनल 3 एयरपोर्ट का जो एरिया है वो अगर हमने एक साथ ले लिया तो जितना एरिया बच जाएगा, that is actually was the dining area, because lakhs of people, more than 50,000 60,000 people used to dine over here for breakfast, lunch and dinner. This is how actually known as a echelon, and this is really, you can take a look at the pictures right now here। नीचे जो आपको लोग दिख रहा है यहाँ पे, these are your, you know, the sports person, okay, and there is lots of their trainers, ministers or officials जो भी है वो सब लोग यहाँ पे है। It's a big event that happened, so this is known as a echelon or sawtooth। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे it's a huge area, because you know अभी आपको island concept में आप जाओगे, that way you will also face a problem। if you go to traditional cafeteria service, you will also face a problem। so to avoid this in a better way and to have a very smooth and fine operation, they have done something like this। अब no, यहाँ पे आपको मतलब you got a huge area, it's huge मतलब it's unthinkable, okay। so and you've got a time, because remember one thing, area is also defined with a time। now let's take an example, if I know that 1 lakh people will going to enter my buffet counter at 2 o'clock and the lunch will be only for 1 hour, then you need a more area, because time is less and the more people will be coming in, then you need a big area। but if you think this is also, you know, these are all known as a banquet management, which I have learned from the hotel। अब देखो समझ लो, आपने देखा कि एक इवेंट है जहां पे डिनर काउंटर जो है वो ओपन हो रहा है 9 बजे से, सुबह 9 लाइक रात के 9 बजे से लेके रात के 12 बजे तक। so you know that there is a cocktail dinner, so people will drink, they will dance and they will come for dinner। now if you have a sitting capacity of 500 people and you know that there is a 1000 guest is in the party और आपके पास only 500 का जगह है, you can still take a risk। you know why? because you know this fact that not all the people will jump on the buffet at the same time, because people will drink,
people will dance, people will eat food, they will have snacks खा के उनके पेट भर जाएंगे, so that is fine. So that's the reason you can still control the crowd. But in case of your, I mean, like when you see that there is only जैसे कि समझ लो ये जो कहानी है, ये जो आपके सामने जो ये इशालों का concept दिख रहा है, why I mean like health ministry has gone for this big concept, क्योंकि उसे मालूम था कि only 1 घंटे का लंच होगा, 1 से लेके 2 बजे आफ्टरनून को 1 घंटे का लंच होगा, और उस 1 घंटे का लंच में 1 लाख लोग एक साथ खाना खाने आएंगे. So naturally, you have to be on your toes. That's the reason this area was so widened. Okay. तो ये है हमारे कैफेटेरिया सर्विस जो अभी हमने देखा. तो people please understand one thing. This traditional cafeteria service, then there is a free flow cafeteria, and there is the echelon. So यहाँ पे कोई waiters का हाथ नहीं. Basically कैफेटेरिया जो है ना ये एम्प्लॉइज के लिए है. चाहे ये कैफेटेरिया यहाँ पे हो, या तो फिर ये कैफेटेरिया ये नीचे जो आपको फोटो दिख रहा है ये हो, या तो फिर ये भी हो. स्टाफ्स के लिए, एम्प्लॉइज के लिए, स्पोर्ट्समैन जो भी है, तो ये सब चीजों के लिए होता है. तो इसके लिए बेसिकली ये क्रिएट किया गया है. ओके, नाउ दिस इज अबाउट द सेल्फ सर्विस. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट टाइप व्हिच सेज carousel. Carousel is something where the food is served on a vending machine, okay, and it's come from a conveyor belt. तो ये देखिए कुछ ऐसा है, इसे हम कहते हैं carousel एक्चुअली. तो ये कुछ इस टाइप का होता है. तो जैसे people have seen that famous movie which is known as, क्या नाम है उस मूवी का जहां पे वो अरे सनी देओल स्पाई बनता है, क्या नाम है उस मूवी का? हीरो. हाँ, हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई. यस. तो उसमें एक सीन था जब आप देखोगे कि when this पाकिस्तानी डेलीगेट अमरीश पुरी and all they come sit on a counter, and उसके बाद ऑपोजिट साइड में वो भेस अपना वो मस्करेडिंग में एक मूंछ लगा के अपना वो सलमान अभी लाइक सनी देओल बैठा था, और आपने देखा होगा वहां पे एक ट्रेन घूम रहा है. दैट इज एक्चुअली कैराउजल कंसेप्ट. उस ट्रेन के हर कंपार्टमेंट में या तो दाल रखा होगा, चावल रखा होगा, रोटी रखा होगा, पूरी सब्जी रखा होगा. So the train will pass from the big table and you will pick up the food according to your choice. ठीक है? So ये basically carousel concept है. ये यहाँ पे क्या है, ये कंटेनर्स को हम ऐसे घुमा देते हैं and then you get the food from there. Okay? But naturally carousel concept जो है, जैसे कि समझ लो carousel अगर आपको देखना है, जब आप ग्वालियर में आओगे तो ग्वालियर में एक जगह है that is known as a जयविलास पैलेस. जयविलास पैलेस जहाँ पे सिंधिया फैमिली रहता है. तो जयविलास पैलेस में अगर आप कभी देखने जाओगे उस पैलेस को, then I mean like you can go. It's open on the weekdays and weekends also. तो उस पैलेस में एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर भी एक सेम कंसेप्ट है, exactly the same concept is there वहां पे. Okay. Now we move to the next one which says that counter service. अब देखिए ये भी एक तरह से सेल्फ सर्विस ही है. अब ये काउंटर सर्विस तो आपने देखा ही होगा, जैसे मैकडोनल्ड्स में हो गया, आप जैसे ये देख सकते हो, ये मैकडोनल्ड्स का ये काउंटर है. एंड यू कैन ऑल्सो टेक ए लुक ऑन द अदर हैंड, ये एक वेंडिंग मशीन है. ये साइड वाला जो वेंडिंग मशीन है ये कहाँ पे दिखता है पीपल? एनीबडी नोज? सर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन. रेलवे. हमारे देश के रेलवे स्टेशन अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है. सर एयरपोर्ट. Yes, that's right. Yes. If you go to Terminal 3, if you go to Hyderabad Airport, Bangalore and all the airports, you will find the same thing. So basically what happened, you will place your coins here and then you get the amount. There is a, I mean like price list is there. On the counter, I mean on the counter it's written that, okay, Lay's chips is 10 rupees, then water bottle or milkshakes will be 20 rupees. And you can place the coin over here, or you can place the cash, just like a Delhi Metro का जैसे हम ticket vending machine है, exactly the same way will be followed here. Okay, that's known as your counter service. So counter service पे यही होता है basically. So that's a one is the vending machine, that's completely artificial intelligence, and the other one is basically known as where somebody will prepare the food and serve it to you. Okay. Now we come to the last part. अब आएगा there is something twist in the tail. अभी तक क्या था? सबसे पहले first category में we have seen in waiter service, मैं तो अपने टेबल से हिलूंगा ही नहीं. गेस्ट कहेगा मैं अपने टेबल से हिलूंगा नहीं, मैं यहाँ बैठा हूं, मुझे बस आप खाना दे के जाओ और
खिला देते तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन मैं वो बोल नहीं सकता आपको। तो ये होता है वेटर सर्विस। वेटर सर्विस समथिंग वेयर वी स्पॉइल द गेस्ट, हम गेस्ट को खत्म कर देते हैं, मतलब गेस्ट को कुछ करने नहीं देते। पर रिमेंबर वन थिंग, इफ यू स्पॉइल अ गेस्ट, एक्चुअली योर ब्रांड नेम विल बी मोर, मतलब लाइक the guest will feel, oh my god, I will always go to Leela hotels, because Leela hotel people are so amazing कि मुझे वो excuse me बोलने का भी मौका नहीं देता है। बट असिस्टेड सर्विस इज समथिंग की। उसके बाद हम लोग आ गए कैफेटेरिया में। कैफेटेरिया में क्या है भाई, मतलब लाइक इफ यू आर बिल गेट्स, इफ यू आर जो बिडेन, इफ यू आर नरेंद्र मोदी, बोथ आर सेम। यू हैव टू कम टू दी कैफेटेरिया, आपको अपना प्लेट लेना है, खाना प्लेट में डालना और खाना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको एक सर्विस भी नहीं दूंगा। इसके बाद आएगा आपका असिस्टेड सर्विस। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट हैपन इन सर्विस। द फर्स्ट थिंग इज गोइंग टू हैपन इज अ बुफे. Buffet is the first thing we will take a look that what will happen actually in case of a buffet. And buffets के classification है. There is something called fork buffet, sit down buffet. There is something called finger buffet also. And finally there is something called carvering. Okay. So let's go and start. And the first one is going to be our sit down buffet. People please mute your mic. I cannot concentrate. What is the problem? I don't know. Please mute yourself here. Okay, let's move. All right. So now, as you can see that there is a sit-down buffet. ये basic buffet है. This is the most basic buffet which you take a look at everywhere in the hotel. सारे hotel में, मतलब 90% hotel you will find this. This is known as a sit-down buffet. Where you can take a look. ये जो मेरा यहाँ पे आपको mouse दिख रहा होगा. This is all known as a shopping dishes. अब इस शॉपिंग डिशेस में क्या होता है, देयर इज अ फूड एंड द फूड इज हीटेड बाय अ फ्लेम अंडरनीथ ऑफ इट। इसके नीचे एक फ्लेम है। शॉपिंग डिश के बारे में आप जान जाओगे जब आप कॉलेजेस में आओगे। तो इसके नीचे एक फ्लेम है, वो फ्लेम जल रहा है एंड द फूड इज गोइंग हॉट ऑल द टाइम। ये सारे टोंग्स है, इसको हम कहते हैं बुफे टोंग एंड दैट इज योर अंडरलाइनर। सो व्हाट विल हैपन इफ आई नीड दिस फूड, आई विल पिक अप दिस टोंग एंड आई पिक इट अप। और प्लेट्स इसके नीचे है। और इंटरेस्टिंग बात और एक चीज भी है, टेक ए लुक एट दिस, ऑल दी प्लेट्स हैव गॉट अ लाइट। अच्छा, कौन बोल सकता है यहाँ पे इस लाइट लगाने की कंसेप्ट क्या है? रेस्टोरेंट में तो लाइट है। एनीबॉडी कैन से? थिंक, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए। It seems that the plates are very much cleaned. ओके, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सर उसका ग्लेज बढ़ाने के लिए। हाँ ठीक है, ग्लेज बढ़ाने के लिए साफ दिखेगा। ओके, और somebody else please Sir, say because what is the reason behind? it is down the table, उधर उतना लाइट्स नहीं जाएगा, सामने पूरे में जाएगा, बट डाउन द टेबल्स उतना लाइट नहीं रहेगा। तो मतलब विजिबिलिटी, राइट? देखने के लिए, विजिबिलिटी, यस सर। अच्छा ठीक है। और अभी तक किसी ने मेन पॉइंट जो है उसको हिट नहीं किया है। somebody please. सर तो ब्यूटीफाई। ठीक है, ब्यूटीफाई हो गया, विजिबिलिटी हो गया, क्लीननेस हो गया। चलो पीपल, ओके, दिस इज नॉट अ, आई मीन ओके, इट्स नॉट योर फॉल्ट। पता है इसका मेन कारण क्या है? एक रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको गर्मी लगती है या ठंडी लगती है व्हेन यू गो टू अ नाइस रेस्टोरेंट? So depend on the AC. डिपेंड ऑन द एसी, नेचुरली। इसका मतलब आपको ठंड लगता है वहां पे, बिकॉज देयर इज एसी। अच्छा, अब एक बात सोचिए, ये खाना तो फूड इज वेरी हॉट, ठीक है, प्लेट इसके नीचे है, रेस्टोरेंट कोल्ड है, सो व्हाट विल हैपन, द प्लेट्स विल आल्सो गेट कोल्ड। सो इफ यू पुट, इफ अब जैसे समझ लो 7 बजे बुफे स्टार्ट हुआ है, 7 बजे से एसी भी ऑन हो गया, प्लेट्स तो नीचे से 6 बजे से रखा हुआ है, so all the plates will get cold. Gradually the time increase, 9 o'clock the plates will be extremely chilled. And then if you put a very piping hot food on the top of the plate, it will naturally lose the temperature. फिर आप कंप्लेन रेज करोगे, सर आपके बुफे के खाना जो है वो बिल्कुल ठंडा है। To avoid this,
what these people have done, they have installed some lights. Now these lights are very very special lights. इसके अंदर ना एक हीट होता है, तो ये क्या करता है, ये प्लेट्स के जो टॉप पोर्शन है, मतलब ऊपर से तक जो प्लेट्स है, इसको इट विल नॉट मेक इट सो हॉट सो दैट यू कैन नॉट टच द प्लेट, बट यस इट विल मेक इट एटलीस्ट बैलेंस हॉट. मतलब समझ लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं कर सकता है वो, बट 60-70 के बीच में इट विल बी देयर. And when they keep it within 60 to 70 degrees Celsius and the खाने का temperature is around like 80 degrees Celsius, then it is okay. So not 60 actually, 50 के आसपास तो रहता ही है. Moderately it will be hot. And when it is moderately hot, then what will happen? You can easily pick up the food and the temperature will not lose. So it's a fantastic learning that we have learned. It is actually installed in the मैं जब मैं JW मैरियट टेरोसिटी होटल में था, बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ. हमारे पास कंप्लेन आना शुरू हो गया कि बुफे का खाना ठंडा है. तो हमने क्या किया, ये जो बुफे के नीचे पहले हम एक फ्यूल लगा देते, हमने 2 फ्यूल लगाना शुरू कर दिया, फिर भी वही कंप्लेन. तो बड़े डाउट वाली बात थी कि मई का टाइम था, दिल्ली में मई के टाइम पे कितना भयंकर टेम्परेचर होता है. ओके, इट्स वेरी हॉट, फूड इज हॉट, लेकिन फिर भी क्यों कंप्लेन आ रहा है. फिर एक दिन क्या हुआ, वन डे अ गेस्ट हैज पॉइंटेड अस ओनली. गेस्ट ने एक दिन कहा कि सर योर प्लेट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड. उसी दिन से मेरे दिमाग में ये बात स्ट्राइक हो गया, अच्छा प्लेट ठंडा है, इसलिए जितना भी गर्म खाना आप बनाओ, when you put that on that hot plate, on that cold plate, it will naturally be cold food. This is the main reason the plates are always kept lighted. There are some hotel which will not find this thing, but there are some hotel which they keep the lights on. इसके कारण common sense बस यही है. इसके एक special lights होता है. ये basically समझ लो Wipro is the only company who manufacture this kind of sophisticated lights. अगर आप ये उषा बल्ब्स, ये सब में देसी जो हमारे बल्ब्स है, ये यहाँ आपको नहीं दिखेगा. ओनली एक विप्रो है और एक GE इलेक्ट्रॉनिक्स है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स बोल के एक फेमस कंपनी है नीदरलैंड्स का. दे यूज्ड टू ओनली मैन्युफैक्चर दिस थिंग. ओके राइट, चलो ठीक है, बहुत ज्ञान हो गया, पॉइंट में आते हैं. अब हो गया ये सिट डाउन बुफे. इसके बाद एक और आएगा आपका फोक बुफे. नेचुरली फोक बुफे का मतलब है यहाँ पे, अच्छा कौन बोल सकता है फोर्क बुफे में हम किस टाइप के खाना रखना पसंद करेंगे, कौन बोल सकता है. सर जो खाना हम फोक से खाते हैं, मंचूरियंस. हाँ, जैसे एग्जांपल, नो मंचूरियन. प्लीज लेट द लेडी स्पीक. Let the lady speak first, then we go to. सर नूडल. Okay, yeah. Now, Harshdeep, please carry on. Sir, like paneer chilies. Paneer chili has got lots of gravy. तो ग्रेवी तो फोक से तो मुश्किल है थोड़ा सा. पास्ता, सर पास्ता. अच्छा, आपका जो फूड नॉलेज है ना, that please get this knowledge out of pasta and all this thing. ठीक है, दुनिया में बहुत सारे खाने हैं और फ्रेंच क्लासिकल मेनू जो हमने अभी तक सीखा है, मुझे लगता नहीं कि किसी ने उनको देखा होगा नोट्स खोल के, नहीं तो यू कैन से दिस आंसर वेरी इजीली. सर फिंगर फूड्स आर देयर. यस, फिंगर फूड्स एक्चुअली, बट फिंगर फूड और फोर्क बुफे में थोड़ा सा अंतर है. अब फिंगर फूड हो गया, जैसे समझ लो सिंपल कहानी है समोसा. फिंगर फूड हो गया जैसे समझ लो सिंपल थिंग है कि पिज्जा. ऑल दिस फूड यू डोंट लाइक टू पिक इट अप बाय टोंग, बिकॉज देखो पिज्जा के ऊपर जो चीज होता है एंड एवरीथिंग इज देयर. नाउ इफ यू प्लेस अ टोंग, व्हाट विल हैपन, ऑल दिस थिंग विल ब्लास्ट आउट एंड नेचुरली योर पिज्जा विल लुक very very bad. Okay, and there is a sandwich and the sandwich is topped with everything. Now once you press your tongue, and what will happen that your tongue will feel that oh my god, this looking, I mean like tongue के pressure से क्या होगा, सारे sandwich के जो filling है that will all come out. So naturally इन सब कारणों के लिए हमने we have stopped this to something like salads and all. ये देखिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे this is known as a tomato and bocconcini salad. तो basically all kind of salads जो होता है, अब देखो salads एक ऐसा food preparation है जहाँ पे you either you put a boiled food or you put a raw food. अब जैसे मतलब raw tomato and cheese, this food
this salad that you are watching on the screen, there is nothing cooked. Everything is raw. The cheese is raw, the tomato is raw, and you can, on the top, you can take a look. There is a basil leaves. All these things are raw. Only there is a dressing, which is known as a white wine dressing and all. That is already given on them. So you can take a fork easily, pierce it inside, and you can serve it to everyone. So that's how known as a fork buffet. So one is a sit down buffet and one is a fork buffet. लेकिन fork buffet और finger buffet में थोड़ा सा अंतर है. Just I mean like 0.1%. जब भी हम फिंगर बुफे पे आ जाएंगे, हमारा फिंगर बुफे जो है कुछ ऐसा होगा. आपको सबको स्क्रीन दिख रहा है ना अभी? Yes, sir. अगर सबको स्क्रीन दिख रहा है, yes, right, okay. ये स्क्रीन जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे एवरीथिंग इज फिंगर बुफे. अब नेचुरली क्या होता है, सिंस द गेस्ट इज पेइंग सो मच ऑफ फूड, सो मच ऑफ मनी टू द होटल, तो वी ऑलवेज फील दैट चलो ठीक है यार, उसको हम, क्योंकि देखो सी गेस्ट हैंड, वी ऑलवेज फील गेस्ट इज गॉड एंड द हैंड ऑफ द गॉड इज वेरी प्रीशियस एंड दैट हैंड शुड नॉट टच द फूड. अगर आपकी गेस्ट ने अगर आपकी खाने को छू लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट लुकिंग हाइजीनिक. ओके, दैट्स द फैक्ट. अब गेस्ट जो भी हो, गेस्ट अगर एक आई मीन लाइक नॉर्मल एक आम आदमी हो, लाइक मैंगो पीपल लाइक यू एंड मी, और गेस्ट अगर बिल गेट्स हो या फिर जो बिडेन हो या शाहरुख खान हो, तो कंसेप्ट भी सेम है. गेस्ट तो गेस्ट है और वो गॉड है. तो वी ऑलवेज से लेट्स डू वन थिंग, लेट्स पुट अ टूथपिक. एटलीस्ट टूथपिक डालने से, देखिए हमने यहाँ पे टूथपिक लगा के रखा है, एटलीस्ट टूथपिक डालने से क्या होगा, इट विल नॉट गोइंग टू टच हिज हैंड. यू कैन ओनली पिक अप बाय द toothpicks and all. So this kind of buffet you can only find in the high tea or maybe in the tea coffee section, because we all know tea coffee के साथ you will not prefer to have a biryani, और चाय के साथ तो आप कभी बिरयानी खाओगे नहीं ना, अभी कभी गार्लिक नान खाओगे, या तो कभी आप रोस्टेड चिकन खाओगे. You will only prefer something like samosa, कचौड़ी, या तो फिर you will also prefer something like sandwich, mini burger, all this food. अब जनरली आपने बर्गर देखा ही होगा, मिनी बर्गर जो था उसके बीच में ना एक वो आता है, एक टूथपिक आता है. व्हाई इट इज डन? सो दैट द एंटायर थिंग विल स्टे इंटैक्ट. दैट्स द रीजन it has been done. So that is known as a finger buffet. Okay, so people, you have learned a very excellent thing right now. So there are three types of buffet actually. One is a sit down buffet, जहाँ पे normal buffet जो हम हर hotels में देखते हैं. And there is something called finger buffet. All the finger foods will be there. हाथ से खाओ. देखिए यहाँ पे कोई टोंग भी नहीं रखा हुआ है. And there is something called fork buffet. Basically all the salads, sometimes pasta and noodles can be also added. No problem. Okay. These are the types of buffet. It's a very, very interesting thing. Okay, right? Acha. And the last topic of the day is going to be carvery. Carvery is a very interesting thing. ये आप कभी किसी बड़े होटल में जाओगे, I mean like if you go to hotels like not in Gwalior, I haven't seen this concept, but if you go any 5-star hotel in Delhi, over there you can take a look. There is a chef. ये एक chef है, और ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, these are the roasted leg of lamb. लंबा एक roasted leg of lamb है, या तो फिर roasted turkey है. So this guest will say that I would like this portion of the chicken. अब ये chef क्या सुनने के बाद क्या दिखाएगा वो, कि मैडम ओके, आई विल जस्ट सर्व यू दिस पार्ट ऑफ चिकन. सो ही विल कट द चिकन फ्रॉम हियर एंड सर्व टू द टेबल. रिमेंबर वन थिंग, दिस इज कंप्लीटली कुक्ड. और ये जो लाइट्स है ना यहाँ पे, ये लाइट्स का पर्पस क्या है, कौन बोल सकता है? व्हाट आर द पर्पस ऑफ दिस लाइट्स? सोचिए थोड़ा सा. ये फूड और जो भी वो प्रिपेयर कर रहे हैं. हाँ बस ठीक है. This is known as a alto sham. These lights are known as a alto sham. So these lights are only purpose of keeping the food hot. देखिए ये बल्ब जो है फूड के कितने नजदीक है, बहुत ही नजदीक है ये. What's the reason behind this? Just to keep the food hot. तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि बुफे काउंटर के ऊपर इतना लाइट्स क्यों होता है. यही है मेन कारण. तो कीप द फूड वेरी वेरी हॉट. जहाँ पे शॉपिंग डिश है दैट्स फाइन, बट जहाँ पे ओपन फूड, जैसे कि समझ लीजिए कि रोस्टेड चिकन एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर, समोसास आर देयर, ओवर देयर यू नीड टू डू दिस कंसेप्ट, अदरवाइज यू विल फेस अ प्रॉब्लम. ओके, सो दीज वर दी, आई मीन लाइक ये जो कार्वरी है, द पर्सन हु क्राब्स द मीट इज ऑल्सो नोन एज ए ट्रांचियर.
फिर से बोलता हूं मैं, प्लीज पीपल लिसन एंड प्रेस कंट्रोल एस, सेव करके रखिए। ही इज नोन एज अ ट्रांश्योर, TRANCHEUR, ट्रांश्योर, ओके, ट्रांश्योर, TRANCHEUR, ओके राइट। सो ये ट्रांश्योर और जो कारवरी का जो आदमी होता है, दिस पर्सन इज, दिस काउंटर इज बेसिकली इनसाइड अ रेस्टोरेंट ओनली, एज एन एडजेसेंट टुवर्ड्स द buffet main course, where the guest will come and he will pick up the food, and that's how the meat has been cut as per the order from the guest. Okay, this is the story of the carvery. Okay, right? ठीक है, so ये हो गया हमारा ये चैप्टर खत्म। अब हम सीधा पहुंच जाते एकदम पहले वाले स्लाइड में। पहले वाले स्लाइड में अगर हम जाएंगे तो ये देखिए आपके स्क्रीन के सामने जो अभी है, टाइप्स ऑफ सर्विस। टाइप्स ऑफ सर्विस में ये क्लासिफिकेशन हमारे थे, जिसमें हमने देखा वेटर सर्विस में इंग्लिश, अमेरिकन, फ्रेंच, रशियन, ब्यूरोदियो। यहाँ पे द गेस्ट विल नॉट इवन रेज द हैंड और डू एनीथिंग, ओनली द सर्विस बाय द वेटर शुड बी डन। सेल्फ सर्विस, वेयर वी हैव सीन देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी वेटर, बट इन बुफे सर्विस देयर इज अ पॉइंट ऑफ वेटर। तभी इस सर्विस का नाम है असिस्टेड सर्विस। यू नो व्हाई? बिकॉज when you take a food from the buffet and when you eat the food, what will happen? You are not the person who will going to take the plate and dump it in a dustbin. Server will come, they will do the clearance and they will serve it in the dustbin actually. लेकिन कैफेटेरिया में क्या हो रहा है? You have to take your own plate, fill it up with roti, rice and dal, eat it off, and then after once the consumption is over, then you can take this plate in the dishwashing area where you need to give it for washing. But in case of a buffet service, which is an assisted service, यहाँ पे क्या है? ये जो आपने खाना खाने के बाद empty plate टेबल में छोड़ के जाओ, we will come and clean your plate. This is the type of service, assisted service. Okay, right? Okay. अब सवाल ये आता है, suppose let's take an example. अब now Ankita Biswal decides to open a restaurant after completing hotel management. IHM ग्वालियर से होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करने के बाद ही डिसाइड, चलो ठीक है, एक मैं रेस्टोरेंट ओपन करने जा रहा हूं। तो अभी अंकिता को दिमाग में क्या क्या फैक्टर रखना है टू ओपन अ रेस्टोरेंट, एंड उसके बाद कौन सा सर्विस में लेके आऊंगा, व्हाट काइंड ऑफ सर्विस आई विल ब्रिंग। सो ये एक 10 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, सो लेट्स टेक अ लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, like what kind of establishment you are opening. So if your restaurant is a specialty restaurant, if your restaurant, let's take an example, you know, you are planning to cater a huge number of people, you know, now you have to, अभी मैं आपसे ये बोलूंगा कि आपके एरिया और लोकेलिटी में जितने सारे रेस्टोरेंट है ना, जब ये लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, I mean when you feel it is safe, please go and visit. I do this thing every day. हर वीकेंड में मैं कोई ना कोई नया रेस्टोरेंट ग्वालियर का मैं एक्सप्लोर करके आता हूँ। उससे मुझे बहुत ज्ञान मिलती है जो मुझे कभी बुक्स में नहीं मिलता है। ओके, सो आपका एस्टैब्लिशमेंट का टाइप कैसा है? आपका एस्टैब्लिशमेंट इज अ, यू नो, इट्स लाइक अ, you know, your establishment is sitting in front of any school, colleges, or in a railway station, or in a very, very posh area or something like this. Then you got location, which I've already said. Then you got time available for service. Now, suppose you open a restaurant in front of, you open a restaurant in front of your, let's take an example, कहाँ पे? IHM ग्वालियर के सामने अंकिता बिस्वाल ने सोचा कि मैं IHM ग्वालियर के जस्ट ऑपोजिट में बहुत जगह है, यहीं पे एक रेस्टोरेंट ओपन करता हूँ। तो अंकिता को एक चीज दिमाग में रखना होगा कि कब सबसे ज्यादा ट्रैफिक होगा। अंकिता, कैन यू टेल मी व्हाट टाइम यू विल फेस द हाईएस्ट ट्रैफिक? सर आफ्टरनून के वक्त। व्हाट टाइम? लाइक लंच टाइम में? यस सर। यस, एंड यू नो अंकिता, आपके लिए एक और समस्या भी है। स्टूडेंट्स आपके पास 1 बजे आएंगे और 2 बजे से फिर से उनका क्लास है, राइट? तो नेचुरली क्या होगा? यस, आपके पास ओनली 1 घंटे का ही समय है। तो इसका मतलब है यू हैव टू बी रेडी फ्रॉम 11 o'clock, 11 बजे से आपको रेडी होके रहना होगा, एंड देन 1 o'clock you have to be completely shoot your buffet and everything. So it means अगर IHM ग्वालियर के 900 स्टूडेंट है
उनमें से अगर 500 भी गलती से आपके पास आ जाता है तो इट विल बी अ बिग क्रंच. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड ए एरिया, एंड इवन इफ यू नीड ए एरिया यू शुड नॉट पुट अ वेरी सिटिंग अरेंजमेंट नहीं करना चाहिए आपको, बिकॉज पीपल आर इन अ हरी. ओके, पीपल इतना जल्दी में है कि वो बोले कि यार बैठ के खाना खाने का टाइम नहीं है. आपको लेके आना पड़ेगा कॉकटेल स्टैंड, जो आप कभी ऐसे फास्ट फूड आउटलेट्स में रास्ते के बाहर देखते हैं, उसको हम कहते हैं बार लाइनर्स. इतने बड़े बड़े जो कॉकटेल स्टैंड होता है उसके ऊपर आपने प्लेट लिया, खाना लिया और खा के निकल गए. ठीक है, द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज कमिंग द टाइप ऑफ कस्टमर. इट मींस दैट योर कस्टमर इज अ स्टूडेंट. अगर आपके कस्टमर स्टूडेंट है तो दे विल बी वेरी फास्ट. अगर आपके कस्टमर समझ लो एजेड पीपल है, लेट्स टेक एग्जांपल 60 प्लस, तो फिर आप आराम से शांत सर्विस कर सकते हो. लेकिन रिमेंबर वन थिंग, जो कॉलेज स्टूडेंट्स है उसको सर्विस में कम हो ज्यादा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है. कि जो एजेड कस्टमर है इनके सर्विस में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ ना, देन दैट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम. बिकॉज स्टूडेंट्स विल नॉट कंप्लेन ऑन द सर्विस, दे आर एक्चुअली कमिंग फॉर द, क्योंकि मालूम क्या है कि स्टूडेंट्स जो है वो एक तो खुद के पैसे से तो वो खाते नहीं है, पापा के पैसे से या फिर दोस्तों के पैसे से खाते हैं. तो नेचुरली क्या होता है कि स्टूडेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ता आप राइट हैंड से सर्विस करो या ना करो. ओके, या आप हॉट फूड दो या ना दो. लेकिन जब एक एजेड आदमी जाता है, व्हेन देयर इज अ 40-50 पीपल, 40-50 एज पीपल, ही अर्निंग मनी. Okay, he earning money or he want every value of his money from your restaurant, then he will feel bad. So type of customer आपको चूज करना है. इसलिए आजकल के टाइम पे ना सारे रेस्टोरेंट की जो कंसेप्ट है वो ओनली ये 18 से लेके 40 का जो एज ग्रुप है इसको ही सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि दिस पीपल आर वेरी फास्ट एंड लेस कंप्लेनिंग इन नेचर. इसके बाद सर्विस स्किल. लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू हैव ओपनड अ रेस्टोरेंट जहां पे आप गिरिडियन सर्विस दिखा रहे हो. ऑब्वियसली यू नो, आई विल टेल यू समथिंग, IHM, इंडिया में कोई IHM नहीं है जहां पे आपको ऐसे स्किलफुल आदमी मिल जाएगा जो जिसको गैरिडो सर्विस के बारे में कुछ मालूम है ही नहीं. आई मीन देयर इज नो पॉइंट. सो यू हैव टू गो टू रशिया और यू हैव टू गो टू अमेरिका टू फेच दिस पीपल, और फ्रांस टू फेच दिस पीपल. So if you take a look कि whether my skill people available, तो it's better that I'll give a pre-plated service जहाँ पे बर्गर प्लेट में डाल के लेके आऊंगा, काम खाता हूँ. Area available, that is also an important role. What is the capacity that you have? Based on this, you need to choice service. अब now if you want to open a buffet service restaurant जहाँ पे आपका buffet है, buffet का मतलब है आप एक large people को खिलाने जा रहे हो. Obviously you need to need a huge area. Whereas if you want to give only a la carte style food, you need to have a very short space. कि a la carte पे छोटा जगह से ही काम हो जाएगा. You know, I'll tell you, a la carte में अगर आप 12 टेबल with 4 covers each, that will also do much more effective for you. ठीक है? And then types of service, like whether you want to put a pre-plated service or American style, or you want to put a silver service, and all this thing plays an important role. ठीक है? कितना? Yes, please. सर गैरिडॉन सर्विस में क्या होता है, मतलब उसमें जो शेफ होता है वो खाना बनाकर दिखाते हैं ना, ओपन किचन टाइप होता है ना गैरिडॉन सर्विस, आई थिंक. No, Garidon service is something where there is no involvement of chef. The chef is basically nothing but a waiter. Waiter will come with a menu. Okay, so guest says that yes, I would like to have a pasta. So now the food will be cooked in front of the guest, and this food will not cooked by a chef but by a waiter. That's why heavy skill required. I mean, like highly skilled. A waiter as well as chef is very hard to find. Okay, this is the fact. And now we got turnover expected, man, like कितना आपका रेवेन्यू आएगा उसके हिसाब से आपको सर्विस चॉइस करना चाहिए. ऑब्वियसली गार्डियन सर्विस में आपको बहुत ही एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है. देन व्हाट आर द इक्विपमेंट्स अवेलेबल, वेदर यू हैव अ राइट इक्विपमेंट विद योरसेल्फ और नॉट, ऑल दिस थिंग्स टेक इनटू. ठीक है, सो ये है एक 10 नंबर का क्वेश्चन है. इफ इट इज एन ऑफलाइन एग्जाम का कभी होता है, सिचुएशन देख के तो लगता नहीं होगा, बट अगर होता है थियरी एग्जाम, then obviously this question plays an important role. Okay, right? So with this we will done with this chapter. Now we will move forward. हम लोग आगे के चैप्टर इसके बाद हम जानेंगे टोबैको के
बारे में, where we'll learn about cigars, cigarettes and everything. But हमारा जो मिड टर्म एग्जाम है, okay, मिड टर्म एग्जाम is our French classical menu planning and everything and up to here. आज हम जहां खत्म, wherever we have finished right now is the area where we will do our midterm exam. ठीक है, which will be starting from 19th onwards, I think. Yep. सर ये लॉन्च सर्विस क्या होती है? क्योंकि एग्जाम में है, हमारे सिलेबस में है लॉन्च सर्विस, आपने बताई नहीं। क्या कैन यू से द स्पेलिंग? लंच सर्विस। ओके, लाउंज। अच्छा, आपने लाउंज देखा है? लाउंज कहाँ पे होता है? मुस्कान, आपने लाउंज देखा है? लाउंज सर एयरपोर्ट्स के पास मैंने लाउंज देखा है। आई मीन लाउंज अच्छा, रेस्टिंग एरिया होता है। अच्छा,